समय थोड़ा लाइट छो Madam, you get the word. Briefly about the characters and yes, the film, I mean the series is very, I made so many films, I'm not able to get that out, you know. Yeah. I mean the beauty of it. Means the burning is in Sanskrit. So it's primarily a revenge story. So obviously we always use this phrase called burning with revenge. So I think that's the context of the title. Ram sir, your Isha, I'll just complete, please. Yeah, Isha, congratulations to you also. You know your combination, like Khalas Girl, Ram Gopalji launched you. How does it feel? Like 20 years of association, and today again on the same platform. Good afternoon, everyone. It's always a pleasure to work with RGV. He is one of his kind. And you realize this. I think there's something in between lines you not see. And yes, of course, I was launched in Khalas by him. And I was very apprehensive, like he mentioned, and like I've mentioned in my earlier interviews, because before Khalas happened to me, I had played only the girl next door kind of roles in the South. And when RGV wanted to shoot with somebody who looked hot, I thought I was most inappropriate for something like that. And it was a revelation for me to see myself like that. I never thought. I remember he showed me the entire song in the house, in the home theatre. And he said, see, and I said, this is me. It was unbelievable for me because I never thought I could look like that. So RGV, he is always known to do something out of the ordinary. And called me for Dhanam. I didn't know what it was all about. All I knew was I was talking to RGV after 10 years. And I knew that he had called me, and since he had called me, it would be something worth my while. I don't question him much. I only questioned him once for Khalas, and then it was history. So after that I said I should keep my mouth shut. He just told me that it's a great ongoing series and it's a fab role, and I think you should do it. That's it. So I said, okay, fine. And he just gave me a one-line narrative. And here I am. That was all that there was. Hi guys, this is Nikita from India Forums. What's your left? Yeah, so the trailer looks terrific, first of all. My question is to Ram sir, as we say, the content is the king these days. So how is... Which you have not seen, I feel that creates a visual layer which would make the experience feel much more newer than whatever you have done. So to that extent, I think there is no parallel to Dhanam, especially because of the terrain. Yeah? So in all these shows, the Indian shows which are there, I just definitely feel, yes, like I said, it's a very violent film. It's to do with revenge. There, on one track, there is something happening between the landlords and Naxalites. And then there is some inter-family rivalry and between people who don't want to be in violence, they're sucked into violence. So the whole thing is caused by this particular terrain where, for example, Isha is a police officer who comes in, but she only can do so much when there is absolutely no respect for law, and on top of that the pressure is coming. So this kind of thing probably is being seen in various films and various stories. But I feel the unique experience is the place it is being situated. For me, it's like dream come true.
मैं अपना सपना जीता हूँ, मुझे हमेशा से हीरो बनना था फिल्मों में. So here I am just doing my job, enjoying every single thing. Like me sitting here right now and witnessing all of this thing and sharing the stage with Ramu sir, Shinde sir, Isha ji, all of them. Like it's beautiful and even you guys. मैंने हमेशा सपना देखा था कि यार मैं स्टेज पे होऊंगा और मुझसे पत्रकार जो है कोई 2-4 अच्छे से सवाल पूछेंगे. So मैं बड़ा खुश हूँ और ये वो डायरेक्टर्स हैं और जब आप इस सपने को जी रहे होते हो और आप बॉम्बे में होते हो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिनेमा, सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ओके नाउ दिस इज वर्क, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो मेरा हमेशा से रामू सर के साथ काम करने का सपना था और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी होगा जिसका नहीं होगा, कंपनी और एनी शेड्यूल. सो शिवा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब रामू सर डायरेक्ट करेंगे खुद और मुझे वो मौका मिलेगा. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट. बट थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है, मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू वेरी मच. सो पटाखा वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग विद विशाल सर. इट्स अगेन ऑन द सेम नोट. ही इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट डायरेक्टर. आई एम जस्ट गेटिंग लकी. I wanted to become hero and I am becoming it every single day. So my whole process is I'm learning and I'm working hard. Please आप लोग आशीर्वाद दीजिए जरूर. ठीक है, thank you very much. आप साउथ में बहुत सारा काम किया आपने. Language, like what language is being used in this totally Naxalites, क्या language use कर रहे हैं exactly? मतलब कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज होता है ना, तो नक्सलाइट और कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? नहीं, कौन सी वाली, मतलब चाहे तेलुगु करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो तो मैं मानता हूँ कि मदर टंग इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तो जो भी अपना मदर टंग है उसमें वो बाकी का लैंग्वेज लिख के. I just want to add one thing. Saji has done a lot of very big super hit Telugu films. yeah, And people love his voice because of the accent he speaks Telugu from Marathi, the Marathi accented Telugu. So now if you ask what language Saji speaks, I don't know. That becomes individualistic. And in the overall Yeah. in the film also I was talking about, like Yeah, I mean, yeah. We had to work on that. So also Saji is not playing a Naxalite, incidentally. He's playing a landlord. But I agree with what he said. See, the point is that everyone, like I'm from Hyderabad, for example, maybe Anna is from Bengal, Isha is from somewhere. All of us will have a peculiar, that is what it operates. I think to completely fine-tune, this is the language of the film, I think it's actually fake to do anything like that. So like if Isha is coming into Dahanam from some other space, yeah, the local dialect could be different. So I think that's how it is. yeah. जी सर, आप थोड़ा कुछ कैरेक्टर के बारे में, and the other actors also like to speak, something on your character and सो मेरा जो कैरेक्टर है, एक विलेज गर्ल जो बहुत ही इनोसेंट है. उसका फैमिली होता है बट समटाइम उनके फैमिली को मार डालता है. उसके बाद वो लड़की नक्सलाइट बन जाती है. फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है. मेरा कैरेक्टर नाम है पवनी. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस लोकेशन पे हम लोगों ने शूटिंग किया है, ऑल एक्टर, इतना गर्मी था और इतना टफ जॉब था. ओह माय गॉड, मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया इसलिए हम लोग बता रहे हैं. आप लोग को आइडिया भी नहीं होगा कि इतना गर्मी था और जो डे शूट हो रहा था, नाइट शूट हो रहा था, होल नाइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे शूटिंग. सो वैसे लोकेशन पे शूटिंग करना टफ था और मुझे ऐसा लगता है कि दहानम हम लोग जो भी हम लोगों ने एक्टिंग किया है, ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल है. मतलब एज अ एक्टर आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे मिला है. मैंने अपना एक्टिंग परफॉर्मेंस दिखाने का चांस मिला है. सो दहानम मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. ओरिजिनल सीरीज दहानम में जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम ओबुल रेड्डी है. और जैसा कि आप लोगों ने विजुअल्स में देखा है, ये लाइक इट्स वेरी ब्रूटल और खतरनाक काइंड ऑफ कैरेक्टर इट इज. सो पहले तो सबसे पहले थैंक्स टू आरजीवी सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और दिस इज माय लाइक सेकंड कंसेक्यूटिव वर्क विद सर.
और थैंक्स टू MX ऑल्सो, थैंक यू सो मच। और आई होप के 14 को जब ये सीरीज रिलीज होगी तो ये कैरेक्टर और पूरा सीरीज आप लोगों को पसंद आए, सो इसी उम्मीद हम रखते हैं। थैंक यू। I just want to tell you something, answering your question about, yeah. His character is actually based on a true character, yeah. And I want to just share a couple of things about him. The first time they told me about him is they said, because he had a reputation, a really violent and really dangerous reputation. So I met a friend of his, the original Obul Reddy's friend. Obul Reddy was killed incidentally in 1995, no? So I asked him, was he really that bad a guy? He said, no, it's not as much as what people think. So how many people do you think he would have killed? I mean, maximum 200, he said. You know? Okay. And he said, what I mean is not that bad a guy. So he said, because see, people think it's more 400 and 500, not that much, only 200, he said. So that is the measurement factor. So they said he is a guy who's actually very nice guy when he's not drunk, but he's all the time drunk. मेरा जमींदार का कैरेक्टर है, बच्चे लोग हैं मेरा, मतलब वो क्या है कि ईगोइस्टिक पर्सन है, उसको इंसल्ट नहीं चलता है, उसको मतलब पनिशमेंट करना है तो उसको पूरे खानदान को पनिशमेंट करना है, इस टाइप का जनरल इनोसेंट आदमी है। पूछो अभिलाष जैसा डेंजरस पर्सन को जन्म देने वाले आप इनोसेंट कैसे हो सकते? एंड एन एक्सपीरियंस पर्सन, क्या डिफरेंस देखते हैं न्यू जनरेशन में जो आज के ज़माने की पीढ़ी है उनके काम करने के तरीके में? मैं बेसिकली पहले डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ, डायरेक्टर के दिमाग में क्या है, मतलब शूल को हम लोग मिले थे तो पहली बार जब नैरेट कर रहे थे तो मैं पेन पेपर लेके बैठा और हर एक सीन में कैसा कैसा कुछ आते थे मैं लेके बैठता था। अभी भी मैं समझो अराउंड 500 भी फिल्म किया होगा तो आज भी मैं बैठता हूँ और ये करता हूँ। और मैं को आर्टिस्ट के बारे में हमेशा चाहता हूँ जो है हमारा डायरेक्टर और हमारा मुझे ने उसको कंसीव किया है तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए है और कैरेक्टर बेस्ड है, लेकिन जो नॉर्मली कैरेक्टर नहीं दिखते अपने आजू बाजू में और उनकी कहानी है ये, तो मेरे ख्याल से लोगों को ये देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि सर जैसे हमने देखा है आप साउथ की मूवी में आप एकदम मतलब आपका लुक एकदम अलग रहता है, लुक अलग रहता है, इस मूवी के अंदर में कैसा है आपका? ये सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, ये एक्सपेक्ट जो नहीं करते हैं, अगर प्लान करते हैं कुछ ऐसा होगा तो उसको आपको सरप्राइज़ मिलेगा ये वेब सीरीज़ देख के। और बहुत जो लोकेशन आपने कभी देखे नहीं वो, इस टाइप के कैरेक्टर कभी देखे नहीं वो, ये उसका मतलब बहुत बड़ापन है। ओके सर, जैसे मूवी अभी पहले मूवी थिएटर्स में आता था, अभी भी थिएटर्स में आता है और ये एक नया एक OTT पे आ रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस OTT के साथ में कैसा है? OTT क्या है, जैसे कि लोग अपने दिल जैसे चाहता है, दिल चाहता है उस तरह से देख सकते हैं, कुछ फुल देखते हैं, आधा देखते हैं, फिर रिवर्स करके देखते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं, फिर नहीं अच्छा लगा तो डायरेक्ट एंड देखते हैं, जो भी जैसा चाहे, या एक वेब सीरीज बार बार देखते हैं, वो सब OTT का प्लस पॉइंट है। लेकिन वो जो फिल्म का माहौल होता है, जो थिएटर का माहौल होता है, वो मिलता नहीं, लेकिन हर एक चीज़ का अपना अपना प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है। कि आपके फैंस को क्या कहेंगे वेब सीरीज़ को लेकर? ये जो दहनम है आप ज़रूर देखिए, क्योंकि लव स्टोरीज़, ये मर्डर मिस्ट्री वो सब देखते हैं, लेकिन दहनम का जो स्टोरी है, दहनम का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से रामू जी ने जो कंसीव किया है और अगस्त्य मंजू ने जो डायरेक्ट किया है और बाकी आर्टिस्ट लोगों ने जो काम किया है, ये मतलब मेरे लाइफ में एक अच्छा प्रोडक्शन है ये।
क्योंकि सर हमने देखा है जैसे कि आप झाड़ और ये जो सोशल काम है बहुत आप अलग मतलब उससे देखते हैं, तो लोगों को उसके लिए क्या आह्वान करेंगे? लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो दुनिया में आपको ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ देता है और खाना सिर्फ पेड़ देता है, और ये जो जादू है वो सिर्फ पेड़ को आती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी पहला ट्री है, पेड़ है, और बाद में बाकी सब लोग हैं। तो सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में पूरे लाइफ ऑक्सीजन लेते वो पेड़ से होता है, और उसके लिए अपन कुछ नहीं करते हैं। ज़िंदगी में अपन जीने के लिए हर बार सोचते कि ये खरीदो, वो ब्रांड खरीदो, वो ब्रांड खरीदो, लेकिन पेड़ कभी लगाएंगे, कभी उसका थैंक्स बोलेंगे, वो सोचना चाहिए। सर और कुछ आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ शेयर करना चाहें? या आने वाले में मराठी में वो नागराज मंजुळे ने जो उनके प्रोडक्शन की फिल्म है घर बंदूक बिरयानी, वो आ रही है। और दूसरा नेटफ्लिक्स का है अभिषेक चौबे, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, सूप नाम का वेब सीरीज़ है, जिसमें मनोज वाजपेयी में और कोंकणा सेन से लेके बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो वो सूप और घर बंदूक बिरयानी ये न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करके। दहानम के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा था, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी की वेब सीरीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर का एक सपना है राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करने का, और इसे मंजू अगस्तिया ने डायरेक्ट किया है। तो मेरी उनसे पहली मुलाकात सेट पे हुई थी और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि वो मेरे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मेरी पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मेरा एक्सपीरियंस जो तजुर्बा काम करने का था वो भी बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत कुछ मिला। और एज एन एक्टर जो एक भूख होती है ना इंसान की कि अच्छा काम करना है, जमा के करना है, टिका के करना है, वो सेटिस्फेक्शन मुझे वहाँ से मिला। बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है, सो प्लीज़ देखिएगा। ओके सर, जैसे कि आपने बताया आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, उसमें आपका लुक एकदम अलग है, पूरा एकदम मतलब जैसा गांव के जैसा पूरा लुक बताया, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? वो लुक मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं शायद उसी लुक को कैरी करूं पूरी लाइफ, क्योंकि कोई टेंशन नहीं भाई साहब, नहा धो के निकले, ऐसे हाथ मारा, घर चले गए, बात खत्म। हवा लगती है कान के ऊपर से, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि थोड़ा प्रोडक्ट लगाओ, बनाओ ऐसे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लुक है, ऑथेंटिक है। और मैं हरियाणा से हूँ, एक गांव से हूँ, तो सादगी की क्या कीमत होती है और क्या मज़ा होता है वो मैंने जिया है, तो वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। मेरा पसंदीदा लुक है, मैं ये कहूँगा। आप लोग बताओ कैसा लगा, सेक्सी लग रहा? अच्छा, एकदम बहुत एकदम अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन। ओके, सो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे सर कि अभी उसमें इतने सीनियर्स एक्टर्स हैं, जैसे ईशा मैम हैं, सयाजी शिंदे सर हैं, उनके साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ईशा जी के साथ तो मुझे मैं शायद कोई एनकाउंटर ऐसा सीन में नहीं है मेरा उनके साथ कहानी के हिसाब से, और शिंदे सर के साथ मेरा था सीन। मेरा पहला सीन जब मैं सेट पे पहुंचा, मुझे खबर मिलती है कि मेरे पिताजी को मार दिया गया और मैं जंगल से घर में आता हूं, तो वहाँ पे वो सीन वहाँ से शुरू होता है और मेरा पहला दिन था। तो शिंदे सर ऐसे चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और मैं उनका नाम सर का भूल जाता हूँ, जो गजनी में मेन विलन है, गजनी, जिनका नाम गजनी है फिल्म में। अच्छा, हाँ, तो वो सर बैठे हुए थे और मैं पिछले 15-20 मिनट से अपने सीन के मूड में था, क्योंकि वो एक बहुत पिता के मर जाने का दुख बहुत अलग होता है, मैंने उसे अभी तक महसूस नहीं किया है। तो एज एन एक्टर मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना एक अलग चैलेंजिंग चीज़ थी। तो 15 मिनट से मैं अपने जोन में था और मैंने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर ने रिहर्सल के लिए बोला था, मैंने कहा नहीं सर टेक करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोगों ने टेक किया था। मैं एंटर किया, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने मेक श्योर किया था कि मैं कहीं भी नहीं देखूँगा, क्योंकि जब आपके पास वो बड़े एक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपका ये मेरा एक पर्सनल था उस दिन। तो वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी और मैं इसलिए उसको भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे उस सीन को परफॉर्म करते हुए भी मेरे जहन में ये बात थी कि ये सीनियर एक्टर बैठे हुए हैं, इन लोगों के साथ तुम काम कर रहे हो, ये एक उपलब्धि है, ये एक अपने आप में मज़ेदार चीज़ है। सो अच्छा रहा। और आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार देखो, ऊपर वाले ने बहुत बहुत भैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भगवान ने जो है बहुत बढ़िया काम किया है कि मुझे हमेशा से हीरो बनना था फिल्मों में,
तो मेरी 5 फिल्में एज ए सोलो लीड हीरो बन के रेडी हैं, जो इस साल रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। धूप छाँव एक पिक्चर है जो हेमंत कुमार जी ने डायरेक्ट की है। एक नर्क है जो अमेज़ॉन के लिए है शायद, मतलब मैं पता नहीं, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, वो कंफर्म है कि नहीं, बट राहुल डायरेक्टर हैं उनके। अभिमन्यु सिंह उसमें मेन विलन है। और उसके बाद टोकन एक फ़िल्म है जिसमें रवि किशन जी की बेटी जो है रीवा किशन, वो हीरोइन है उसके अंदर। और एक फ़िल्म है गबरू गैंग, वो पतंगबाजी के ऊपर है, वो भी बहुत एक अलग तरीके की फ़िल्म है। फैमिली स्पोर्ट्स, पतंगबाजी एक मुकाबला होता है, जैसे एक स्पोर्ट्स है बट उसको बहुत कम दिखाया जाता है। और मंडली एक पिक्चर है राकेश ओम चतुर्वेदी जी ने जो डायरेक्ट की है, रामलीला एक्टर्स के ऊपर, कास्टिज़म के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। तो ये 5 फिल्में बन के रेडी हैं, ये वेब सीरीज़ है, तो आप लोग आशीर्वाद दो यार, मतलब प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमें तरक्की मिले। ओके, जाते जाते आपके फैंस को क्या कहेंगे? मैं अपने फैंस को कहूँगा, इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल सकता था, वो पीछे से ऐसे काटने का इशारा करा, ऐसे नहीं करते, बात पूरी करते मारूंगा मैं अपने फैंस को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा से मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर एक कलाकार छुपा है जिसे मैं हर रोज़ तराशता रहता हूँ, हर रोज़ उसे खोलता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे काम हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगे, मेरी परफॉर्मेंसेस आप लोगों को पसंद आएंगी, और आपके दिलों में मुझे वो जगह मिल पाएगी, वो सम्मान मिल पाएगा। और ये मेरा वादा है कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहूँगा और आप सभी को इसी तरह बहुत सारा प्यार करता रहूँगा। तो प्रार्थना कीजिए मेरे लिए और आशीर्वाद दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए जो 5 फिल्म हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फर्स्ट में MX प्लेयर का एक ही चीज़ बताऊंगी कि यूट्यूब के बाद MX प्लेयर फ्री ऐप है जो कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है। ऐसा जब OTT होता है तो लोग चाहता है कि फ्री ऐप में देखें, और आज के टाइम पे MX प्लेयर का नेम बहुत ज़्यादा है, और मेरा इसके पहले भी चरित्रहीन आ चुका है एंड बिग हिट हो चुका है, मतलब फर्स्ट टाइम, और उसकी वजह से मुझे अवार्ड भी मिला था बिकॉज MX प्लेयर में वो हिंदी में डब हुआ था, बंगाली सब्जेक्ट था। सो 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रहा है दहनम। तो मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट ऑडियंस बहुत लाइक करता है, और वो भी फ्री ऐप में अगर MX प्लेयर में लोग देखना चाहेगा। एंड जितने सारे आर्टिस्ट हैं सब इतने अच्छे परफॉर्म किया या इतने फेमस आर्टिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कि थिएटर में जाने के लिए बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बहुत कम जाता है, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है। तो जब भी फ्री टाइम होता है या कभी भी ऑफिस का लंच ब्रेक हो, नाइट को हो या कॉलेज में, तो लोग हाथ में मोबाइल होता है तो वेब सीरीज़ कोई भी देखता है, वहाँ पे एंड करता है, देन अगेन वो बाद में देखता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा वेब सीरीज़ और MX प्लेयर में फ्री ऐप या लोग पसंद करेगा, और ये कहानी वैसा ही है। मैं बताऊंगी कि एकदम पूरा लुक चेंज है इसमें, टैन मेकअप, एक विलेज गर्ल, इनोसेंट गर्ल। तो जो पवनी कैरेक्टर है वो एक गांव में रहता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, सडनली उसके फैमिली को मार डालता है, मेरी सिस्टर को रेप करता है, तो पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है। तो वो एक लड़की, इनोसेंट लड़की, सडनली वो किसी भी हालत में वो भाग के नक्सलाइट बन जाता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो वो सिचुएशन में वो कहानी है। जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो MX ओरिजिनल सीरीज़ है हमारी दहनम, जो कि 14 के परसों रिलीज होने वाली है, उसके सारे एपिसोड सीजन 1 के। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। जब मुझे इसके बारे में बताया गया, अप्रोच किया गया, तो मुझे फर्स्ट जब मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया गया जो कि मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ, ओबुल रेड्डी का कैरेक्टर है, और मुझे उसने इतना प्रभावित किया, उस कैरेक्टर स्केच ने, उस कैरेक्टर ब्रीफ ने मुझे वो इतना सॉलिड और इतना अच्छा उसका इम्पैक्ट लगा कि मैं आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार ये प्रोजेक्ट तो मुझे करना ही है यहाँ। और सेकंड बात आती है जब आप सुनते हैं RGV सर का नाम, तो मतलब वो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं सर के साथ D कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझता हूँ, मैं बहुत लकी समझता हूँ, और वाले का आशीर्वाद है कि मुझे सर के साथ लगातार दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। अभी मैं आपको बताऊँ अपने कैरेक्टर के बारे में, तो ये जो ओबुल रेड्डी का कैरेक्टर है, ये बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ कैरेक्टर है। मतलब
मतलब इसको अगर मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं तो क्या होता है, एक वैसा कैरेक्टर है कि घर वाले अगर रियल लाइफ में आपको बोले कि यार वो सामने से बंदा रहा है बच्चों को कि आप घर के अंदर चले जाओ, लोग घर के अंदर चले जाओ, नहीं इसके सामने नहीं आना, तो ये उस टाइप का कैरेक्टर है जिसे देख के लोग डरते हैं। और ये कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो रियल में हूँ उसके एकदम अपोजिट है, एकदम डिफरेंट है ये। तो वो चैलेंजिंग था और बहुत ही मुझे मज़ा आया इस कैरेक्टर को। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे। मैं सर के साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ, इट्स अ तेलुगु फिल्म कोंडा, और उसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि एक बहुत ही दबंग टाइप ऑफ पुलिस ऑफिसर है, जो उसके अपने खुद के रूल्स हैं, वो अपने जो उसके दिमाग में आता है उस टाइप से वो काम करना पसंद करता है, किसी के प्रेशर में नहीं आता। तो एक होता है ना दबंग काइंड ऑफ कैरेक्टर, सो वो आप बहुत जल्दी देखेंगे।